السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوستو، آج میں اپنے ایک نہایت محبوب مصنف کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا قلم کار جس کی تحریریں آپ کو اپنی گرفت میں لیتی ہیں، جو اس طرح لکھتا ہے کہ جیسے وہ باتیں کر رہا ہے، آپ پہ کوئی بھی اضافی بوجھ ڈالے بغیر آپ کو مختلف قسم کے موتیوں سے نوازتا چلا جاتا ہے، اور آپ شاد و آباد بھی رہتے ہیں، اور حصول علم کا جو سلسلہ ہے وہ بھی آپ کا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ آپ کی جو علمی حیثیت ہے وہ بھی مستحکم ہوتی رہتی ہے۔ میری مراد مولانا محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ یہ ہم لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ ہم لوگ اس عہد میں زندہ رہے جب وہ بھی ماشاءاللہ زندہ تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ شرف کبھی حاصل نہیں ہو سکا کہ ہم ان سے مستفید ہو سکیں، ڈائریکٹ ان سے مل سکیں، انہیں دیکھ سکیں۔ ظاہر ہے وہ سرحد پار تھے، لاہور میں ہوتے تھے، پاکستان میں ہوتے تھے، لیکن ہم لوگوں نے انہیں دیکھا ہے، ان سے ملاقات کی ہے، ان کی تحریروں کے ذریعے، ان کی کتابوں کے ذریعے، اور کہا جانا چاہیے کہ ہم نے ان کی صحبت میں وقت گزارا ہے۔ آپ ان کی کوئی بھی ایک کتاب اٹھا لیں، آپ جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ ہر قدم پہ یہ محسوس کریں گے کہ مصنف آپ کے ساتھ ہیں، آپ مصنف کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دور ہے جو چل رہا ہے، جیسے ایک میکدہ سا سج گیا ہے، ساقی بھی موجود ہے، میخار بھی ہیں، اور دور جام چل رہا ہے۔ محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبی حیات دی۔ مارچ 1925 میں یہ کوٹ کپورہ ایک بستی تھی ریاست فرید کوٹ میں، وہاں پیدا ہوئے، اور دسمبر 2015 میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو 90 سالہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی، اور بڑے عظیم لوگوں سے استفادے کا آپ کو موقع ملا۔ مولانا محمد حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے جو اساتین علم و فضل تھے، ان سے آپ کو کسب فیض کا موقع ملا۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ مولانا حنیف بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ کی باضابطہ تربیت میں آپ رہے، اور ان کی انگلیوں کی تراش نے جن شخصیات کو بنایا سنوارا، ان میں محمد اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ سیر فہرست ہیں، جن کا نام ظاہر ہے کہ لیا جانا چاہیے۔ آپ کو محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدت تک کام کرنے کا موقع ملا، اور ان سے استفادے کا موقع ملا۔ آپ نے شروع میں ہی، مطلب جب آپ یہاں سے مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے آپ پاکستان گئے، تو وہاں کی جو مرکزی جمعیت اہل حدیث تھی، وہاں کے دفتر سیکریٹری مقرر ہوئے۔ شروع میں جب الاعتصام نکلا تو آپ اس کے نائب ایڈیٹر تھے۔ بعد میں جب مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی وجہ سے استعفیٰ دے دیا، تو 1951-52 میں آپ اس کے باضابطہ مدیر رہے، اور مدت تک مدیر رہے۔ پھر آپ نے 1965 میں ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور سے وابستگی اختیار کی، اور وہاں رہ کر بڑا عظیم کام جو ہے نا آپ نے کیا۔ فقہ ہند و پاکستان جیسا بڑا ایک کہہ لیجیے کہ انسائکلوپیڈیائی کام، ایک بالکل دائرۃ المعارف ٹائپ کا کام آپ نے کیا، اور بھی بہت سارے کام کیے۔ وہاں شیخ محمد اکرام جیسا محقق تھا، جس کے ساتھ محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے، ان کے ساتھ آپ کو جعفر فلواری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا موقع ملا، اور آپ نے کافی استفادہ کیا۔ مختلف کہہ لیجیے کہ سرگرمیوں سے آپ وابستہ رہے، اور شروع سے بزرگوں کے زیر سایہ کام کرنے، انہیں قریب سے دیکھنے، اور بہت ساری چیزوں کو
समझ लीजिए कि अपनी याददाश्त के संदूकचे में महफूज करने का मौका मिला। इसलिए बाद में जब आपने इन तमाम चीज़ों को लिखा है तो वो तो समझ लीजिए कि इतनी खूबसूरत दास्तान है, इतने प्यारे अंदाज में लिखते हैं कि आदमी नक़्दे दिल दे बैठता है। मौलाना मोहम्मद इसहाक़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह इस अहद के बहुत ही मायानाज मुसन्निफ़ और काबिल क़द्र मुअर्रिख़ हैं। आपको अहले इल्म ज़हबी दौरा कहते हैं। और जिस तरह से आपने बर्रे सग़ीर हिंदो पाक की इल्मी तारीख़ को मुदव्वन किया है, महफूज किया है, वो चाहे बर्रे सग़ीर में इल्म फ़िक़्ह हो या फ़ुक़हाए हिंदो पाक हो, या फिर जो आपने उलमाए अहले हदीस को उनकी खिदमात को जिस तरह मुदव्वन किया है, वो अपने आप में बहुत ही काबिल क़द्र है। ये नस्ल जो आम तौर से अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ से उस तरह वाकिफ़ नहीं है, उसके लिए मौलाना मोहम्मद इसहाक़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह की जो तहरीरें हैं वो नेमत गैर मुतरक़्क़बा है। आपको कोशिश करनी चाहिए बज़ाब्ता कि आप उनकी किताबें तलाश करके पढ़िए। इतना जाज़िब उसलूब है, इतना लाजवाब कि कहा नहीं जा सकता। आप यकीन जान लीजिए कि गुफ्तगू को तहरीर बनाने का और इल्मी तहरीर बनाने का ऐसा हुनर बहुत कम देखने को मिलता है। खाका निगारी इतनी ज़बरदस्त करते हैं, वाक़यात को उस तसलसल और रवानी से बयान करते चले जाते हैं। एक तो याददाश्त पे इंसान बिल्कुल कह लीजिए कि मुतहय्यर होता है, लेकिन लिखने का जो उसलूब है, जो रवानी है, उसमें जो शगुफ्तगी है, कहीं पे कोई लफ्ज़ आपको खटकेगा नहीं। एक बिल्कुल अजीब व गरीब रवानी है जो आदमी को अपने गिरफ्त में ले लेती है। तो मौलाना मोहम्मद इसहाक़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ हालांकि तारीख़ी एतबार से जब बहुत ज़्यादा छान पटक से काम लेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी आपको मिल सकती हैं जिनको आप हक़ाइक़ की रोशनी में रद्द भी कर सकते हैं या जिनका कोई दूसरा ज़ाविया भी सामने आ सकता है। लेकिन तारीख़ के एतबार से भी उनके यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ ख़राबियाँ नहीं हैं। अफ़कार के एतबार से ज़ाहिर अहले हदीस आलिम दीन हैं, बड़े अहले हदीस उलमा की ज़ेर तरबियत रहे हैं, तो इसलिए इस मामले में भी निखरे हुए हैं। बाज़ मामलात में वो चाहे जिस सतह का आलिम दीन हो, जिस सतह का मुसन्निफ़ और मुतकल्लिम हो और मुसन्निफ़ हो, बाज़ मामलात में बाज़ नुक्ता नज़र में हम उनसे अलग राय भी इख्तियार कर सकते हैं। ख़ास तौर से मौलाना इसहाक़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तसव्वुफ़ को लेकर के जिस तरह का एक रुझान था, उसमें हमारे बहुत सारे दूसरे बुज़ुर्ग हैं जो उनके साथ नहीं हैं। तो ये कोई बहुत मतलब कह लीजिए कि ताज्जुब खेज़ बात भी नहीं है या कोई ये नादिर बात नहीं है। बड़े लोगों के यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे आदमी मुत्तफ़िक़ न भी हो, लेकिन उसके बावजूद जो सरमाया है मौलाना इसहाक़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह का, वो बहुत ही अजीम सरमाया है। वो फ़ुक़हाए हिंद का और हिंदो पाक का उनका सिलसिला हो जो 8 जिल्दों में छप करके सामने आया और समझ लीजिए कि एक इंसाइक्लोपीडियाई काम है। उसके अलावा जो उलमाए अहले हदीस की खिदमात पे उन्होंने काम किया है, वो नुक़ूश अज़मत रफ्ता हो, काफ़िला हदीस हो, दबिस्तान हदीस हो, चबनिस्तान हदीस हो, गुलिस्तान हदीस हो, ये सारा आप यूँ समझ खुद्दाम अहले हदीस, खुद्दाम कुरान हो, ये सब हमारे लिए इतना अजीम सरमाया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये दरअसल तारीख़ को मुदव्वन करने का काम है। हम आम तौर पर ये शिकायत करते हैं कि भाई हम अपने लोगों पे ध्यान नहीं देते, उनकी खिदमात से लोगों को मुतारफ़ नहीं कराते। तो इसहाक़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरीज़ा बहुत अच्छे अंदाज में अंजाम दिया है। और जो खाके उन्होंने लिखे हैं वो तो बिल्कुल आला पाए के खाके हैं। बल्कि जो खिदमात वाली उनकी किताबें हैं, उनमें कुछ किताबों में जैसे उन्होंने जो लोग ज़िंदा थे उनसे उनकी मालूमात मंगवा ली थी, तो उसमें वो कैफियत उन किताबों में मुसन्निफ़ की जो अपनी शख्सियत है वो उस तरह से नुमाया नहीं है, या उनका उसलूब जो वो ताज़ा उसलूब है वो उस तरह से नहीं दिखता जिस तरह से मिसाल के तौर पर बज़्म अर्जमंदा में आपको दिखेगा, हफ्ते इक़लीम में दिखेगा, महफिल दानिशमंदा में दिखेगा। तो मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि बज़्म अर्जमंदा तो कम से कम एक मरतबा ज़रूर पढ़ करके देखिए। वो नुक़ूश अज़मत रफ्ता एक मरतबा आप पढ़ करके देखिए, महफिल दानिशमंदा, हफ्ते इक़लीम, ये जो किताबें हैं इसमें मौलाना इसहाक़ भट्टी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद नज़र आते हैं बज़ाब्ता। उनका ताज़ा उसलूब, उनके बात करने का एक सलीक़ा, एक जो दास्तान सुनाने की उनकी कैफियत है उनके यहाँ, और उस दास्तान को इस खूबसूरती से कि उसमें यानी ऐसा नहीं हो कि अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ ऐड कर दिया गया हो, लेकिन जो वो खूबसूरती है वो बाकी रहे। जो तारीख़ है आपके सामने
इस सहल और रवानी के साथ आ जाए कि आप बहुत कह लीजिए कि पुरलुत्फ अंदाज में इस्तेफादा कर सकें, आप महजूज भी हों और आप साथ ही साथ कस्बे फैज़ भी कर रहे हों। तो ये जो कैफियत है मौलाना इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सारी किताबों में है। जो खाके उन्होंने लिखे हैं वो लाजवाब लिखे हैं। इसी तरह जो उनकी खुद नविश्त है गुज़र गई गुज़रान, वो तो मतलब खुद नविश्त के सिलसिले में कहा जाना चाहिए कि एक इजाफा है। बहुत अच्छी किताब लिखी उन्होंने और बहुत, मैंने बताया कि असल में वो इस सिलसिले के बड़े अजीम कलमकार हैं। अगर उनको ये मौका मिले कि वो कोई दास्तान छेड़ें, उनको ये मौका मिले कि वो कोई तस्करा छेड़ें, वो गुफ्तगू भी उसी शान से करते थे। उनके जानने वाले जिन्होंने उनको करीब से देखा है, मौलाना शेख मोहम्मद उज़ैर रहमतुल्लाह अलैह, वो अक्सर उनका जिक्र करते थे और उनकी जो सादगी थी, जो बेसाख्तापन था, उसको बयान करते थे। बल्कि बाद के दौर में मौलाना इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह शक्ल समात के शिकार थे, कम सुनते थे, तो कहते थे कि अब बड़ा अच्छा मौका है कि मैं सामने वाला क्या कह रहा है वो मैं सुनता नहीं और मुझे जो सुनाना रहता है मैं सुना ले जाता हूँ। तो बड़ी दिलचस्प शख्सियत, उनकी तहरीरों में मिजाह का उनसुर बड़ा दिलचस्प है, तंज का जो उनसुर है वो बड़ा दिलचस्प है। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो सीखना चाहते हैं कि बातें कैसे की जाती हैं, तहरीरें कैसे लिखी जाती हैं, तो ऐसे लोगों को भी मौलाना इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों से इस्तेफादा करना चाहिए। तारीख़ का जिनके यहाँ भी ज़ौक़ है, शख्सियात से जिनको भी लगाव है, उलूम से जिनको मोहब्बत है, उनको मौलाना इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें बहुत शौक़ और ज़ौक़ से पढ़ना चाहिए। तो गुज़र गई गुज़रान उनकी बहुत अच्छी किताब है। इसी तरह जो सवाने हयात उन्होंने लिखे हैं, जो मिसाल के तौर पर मौलाना मोहम्मद भुजानी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो उनकी किताब है, इसी तरह मौलाना मोहम्मद हनीफ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो उनकी किताब है, काजी सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो उनकी किताब है, ये सारी किताबें और ख़ानदानों के ऊपर जो उन्होंने किताबें लिखी है, जैसे रोपड़ी उलमाए हदीस वगैरह, तो ये सारी किताबें आप यकीन जान लीजिए कि सरमाया की हैसियत रखती हैं। और उनका जो एक तो तहकीकी मिजाज था, इदारा तहकीकी इस्लामिया में भी थे, और उस तहकीकी मिजाज में वो खुश्की नहीं थी। आम तौर पर जो मुहक्किकीन होते हैं उनके उसलूब में, उनका उसलूब इल्मी होता है, मिजाज में एक तरह की खुश्की होती है, और जब तहकीक और खुश्की आपस में मिल जाए तो इस्तिफादे की जो राह है वो निस्बतन थोड़ी सी तंग इसलिए हो जाती है कि फिर पढ़ने वाले को थोड़े जब्र से भी काम लेना पड़ता है, अपने आप को लगाना पड़ता है, बहुत तवज्जो और इन्हिमाक से जब आप अपने आप को लगाते हैं, तब मुहक्किकीन की तहरीरों से आप अपने आप को अटैच कर पाते हैं और आप इस्तिफादा कर पाते हैं। इसके बिलमुकाबिल मौलाना इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ये जो बड़ी खूबसूरत समझ लीजिए कि कैफियत पाई जाती है, वो ये है कि वो तहकीक से भी काम लेते हैं, तारीख़ को तारीख़ की तरह पेश करते हैं, लेकिन उसलूब में बड़ी शगुफ्तगी है। मिजाज में चूँकि उनके यहाँ एक तरह का मिजाज पाया जाता है, एक पुरलुत्फ अंदाज़े बयान भी है, और दास्तान सराई की जो उनके यहाँ एक कैफियत बन जाती है वो उनकी तहरीरों में एक दूसरी किस्म की चाशनी डालती है। तो इससे आप किसी किस्म की कोई खुश्की या किसी किस्म की कोई बोरियत महसूस नहीं करते, और आप आसानी से माशाअल्लाह पढ़ते चले जाते हैं, इस्तिफादा भी करते चले जाते हैं, और आप यूँ कह लीजिए कि ज़ुबान बयान के एतबार से भी अपने आप को धनी करते चले जाते हैं। तो जिन लोगों को तारीख़ से मोहब्बत है उनको भी मौलाना इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह से इस्तिफादा करना चाहिए। बज़्म अर्जमंदा में उनकी तहरीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर है। देखिए, मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर बहुत सारी तहरीरें लिखी गई हैं, और मतलब बड़े बड़े लोगों ने तहरीरें लिखी हैं। जो लोग मौलाना आज़ाद को करीब से जानते थे उन्होंने भी लिखी हैं, और मतलब एक सरमाया अबुल कलाम आज़ादियात या आज़ादियात अगर कहा जाए तो उसका एक बाज़ाब्ता कह लीजिए कि एक सरमाया तैयार है, एक लाइब्रेरी कायम हो सकती है माशाअल्लाह अबुल कलाम आज़ाद पे। यानी वो चंद शख्सियात, इकबाल, गालिब और जैसी शख्सियात जिन पे बहुत ज़्यादा लिखा गया, उनमें एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी है। उसके बावजूद बज़्म अर्जमंदा में जो तहरीर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में मौलाना मोहम्मद इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह की है, वो एक इजाफा है, बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं जावियों से इजाफा है। बल्कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमहुल्लाह का जो एक कीमती बहुत अजीम शाहकार है तर्जमानुल कुरान, और उसका जो मुकदमा है, उस मुकदमे से पहले जो इंतिसाब है मौलाना का, उन्होंने दीन मोहम्मद कंधारी थे उनकी तरफ इसका इंतिसाब किया। मौलाना ने नाम नहीं लिखा है, लेकिन वो शख्सियत कौन थी और कब मौलाना से किस तरह से, जब मौलाना जेल में थे तो इस्तिफादा करने के लिए आई थी, और कितना चल करके काबुल से कंधार से आई थी, उसकी पूरी तफसील अपनी तहकीक से
मौलाना मोहम्मद इसाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें बयान किया, और इस खूबसूरती से बयान की है कि मत पूछिए। तो वो तमाम लोग जो ये समझते थे कि मौलाना आज़ाद ने ऐसे ही एक दास्तान छेड़ दी है या एक अफसाना जो है ना वो बयान कर दिया है, उनके ऊपर समझ लीजिए कि इस तहकीक ने एक ज़ोरदार तमाचा भी लगा दिया और सच्चाई भी सामने आ गई है कि किस तरह से मौलाना आज़ाद से लोग इस्तेफ़ादा करते थे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि उनके यहाँ तहकीक भी है, तारीख़ भी वो पेश करते हैं, बहुत सलीके से करते हैं, उसलूब बहुत ताज़ा है, बहुत ही जानदार उसलूब है, और जो जिन शख्सियात पे उन्होंने लिखा, जो खाके उन्होंने लिखे हैं वो तो बहुत ही लाजवाब है। मसला ये है कि आम तौर से जो लोग अदब के ठेकेदार कहलाते हैं वो दीनदार लोगों की तहरीरों को उस जाविये से देखते नहीं हैं, वरना आप यकीन जान लीजिए कि उर्दू के जो बेहतरीन खाके लिखे गए हैं वो सिर्फ वो नहीं है जो गैर दीनी तबकों में लिखे जाते हैं, या जो मिसाल के तौर पर मंटो या असमत या इस तरह के दूसरे लोगों ने लिखा हो वही अच्छे खाके हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मौलाना मोहम्मद इसाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन शख्सियात पे भी कलम उठाया और खाके लिखे हैं तो इतनी ज़बरदस्त किरदार निगारी की है, ऐसी मंजर कशी है उनके यहाँ कि कहा नहीं जा सकता, और उसलूब की जो रवानी है वो बिल्कुल दरिया की रवानी है। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि जिन मुसन्निफीन को आप पढ़ना चाहते हैं, और आम तौर पर ये शिकायत के नहीं शेख कहाँ हमारे यहाँ लिखने वाले नहीं हैं, जमात अहले हदीस में अच्छे कलमकार नहीं है, भाई तुम इसाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह की, मोहम्मद इसाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह की कोई भी एक किताब उठा करके देख लो। मौलाना मोहम्मद हनीफ नदवी रहमतुल्लाह अलैह पे जो उन्होंने लिखा है वो कलम तोड़ दिया है, आप पढ़ करके देखिए आपको कितना मज़ा आएगा, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मोहम्मद हनीफ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जी रहे हैं, उनके साथ हैं, उनकी महफिल में वो आपके साथ हैं। और ये कमाल होता है किसी मुसन्निफ का कि वो इस तरह से लिखे कि उस मंजर को जिंदा कर दे, उस अहद को वापस आपके सामने ला करके रख दे और आप उस अहद में जीने लग जाए। तो जो मेरे बहुत पसंदीदा मुसन्निफीन हैं उनमें मोहम्मद इसाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह, मैं सबसे पहली किताब बज़्म अर्जमंदा थी जो मुझे मिली थी, और मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि ये आदमी कहाँ मिल जाए, है ना, माथा चूम लूँ, मिले तो मतलब क्या कहते हैं अपनी सआदत। और जब दूसरी तहरीरें मिलती चली गई, जहाँ जहाँ किताबें मिलती हासिल करने की कोशिश करता और पढ़ने की कोशिश करता। तो ये वो हमारे बुज़ुर्ग हैं जिनको अल्लाह ताला ने मौका भी अच्छा दिया, जिन्होंने पढ़ा और मतलब यूँ कह लीजिए कि उस पूरे सरमाए को इस तरह से हमारे हवाले करके गए कि उनके लिए जितनी दुआ की जाए कम है, उनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। हमारी ये एक तरह से महरूमी होगी, नादानी तो होगी ही, महरूमी होगी कि अगर हम उस सरमाए से इस्तेफ़ादा न कर सकें। इस सिलसिले में ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बाज़ मतलब तहकीकी मकाले भी उनकी शख्सियत पे माशाल्लाह लिखे गए, लाहौर यूनिवर्सिटी वगैरह में भी, और भी कुछ लोगों ने माशाल्लाह तहरीरें भी लिखी। और जो शख्सियात हैं मौलाना की तहरीरों में, जो शख्सियात आई हैं उनका एक इशारिया भी हाफिज़ शायद क्या नाम है उनका, हाफिज़ मोहम्मद शाहिद साहब ने उन्होंने माशाल्लाह एक तैयार कर दिया, उसका इशारिया भी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जिससे आदमी इस्तेफ़ादा कर सकता है। इसी तरह मौलाना ने हिंदुस्तान में जो अहले हदीसों की तारीख़ है, हमारी जो तारीख़ मुसलमानों की तारीख़ है वो तो है ही है, जो अहले हदीसों की तारीख़ है उससे भी उनका कई एक काम है और उससे आदमी अच्छी तरह इस्तेफ़ादा कर सकता है। बर्रे सग़ीर में अहले हदीस की आमद बहुत ही ज़ोरदार किस्म की उनकी किताब है, तहकीकी किताब है। आपको आपकी जड़ें तलाश करनी हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़िए। फिर बहुत सारे लोग जो उल्टी सीधी बातें करते हैं आप उनके बारे में समझ लीजिए कि बेहतर वाक़फ़ियत हम पहुंचा सकते हैं। इसी तरह बर्रे सग़ीर में अहले हदीस की सरगुज़िश्त भी उनकी एक किताब है जिसमें उन्होंने जो मुख्तलिफ़ तंजीमें रही हैं, है ना, तदरीस व तफ़हीम का जो हमारा अंदाज़ रहा है उन तमाम का बहुत अच्छा जायज़ा लिया है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि जो काम असल में उनका है बेसिकली जो शख्सियात पे भी है, उनकी अक्सरियत हमारी शख्सियात हैं अहले हदीस उलमा पे। अहले हदीस जो कह लीजिए कि मुहद्दिसीन हैं, उनमें मुफस्सिरीन हैं, उन वगैरह पे उन्होंने उन शख्सियात पे ज़्यादा लिखा है और इस तरह से लिख दिया है कि जैसे कहकशां सा तैयार है। तो हम ये कोशिश करें कि मौलाना मोहम्मद इसाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और ये चूँकि हमारे अहद के मुसन्निफ़ है, 22 दिसंबर 2015 को उनकी वफ़ात हुई है, तो इस एतबार से ज़ाहिर है हमारे अहद के मुसन्निफ़ हैं और तहरीरें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर किताबें भी उनकी ये आज के ज़माने के एतबार से लोग
चाहते हैं कि किताबें मिल जाएं तो आप इंटरनेट पे भी तलाश करेंगे तो ज़्यादातर किताबें PDF की शक्ल में मौजूद हैं। आप kitabussunna.com वगैरह पे भी ज़्यादातर किताबें उनकी डाल दी गई हैं। बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे भी मिल जाती हैं। और एक अच्छा काम ये हुआ है कि मोहम्मद इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी एक आध किताब माशाल्लाह छप चुकी है, तो उनसे भी इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। तो मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये कि बड़े ही ज़ोरदार किस्म के हमारे मुसन्निफ़, बहुत ही आला पाए के आलिम दीन और बहुत ही मनमोहनी शख्सियत मोहम्मद इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीरों में ज़िंदा नज़र आते हैं, चलते फिरते। और जिन बुज़ुर्गों पे लिखते हैं जैसे उनको दोबारा से उनकी तहरीरें हमारे सामने ला कर रख देती हैं। तो इन तहरीरों के जो फ़वाइद हैं वो बेशुमार हैं, उसलूब के एतबार से भी, फ़िक्र व नज़र के एतबार से भी और तारीख़ व तहक़ीक़ के एतबार से भी। ऐसे लोगों को ज़ाय नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों से इस्तेफ़ादे की राह हमेशा खोल कर रखनी चाहिए। अगर हम अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है। और ये अच्छी बात है कि मौलाना की किताबें माशाल्लाह हिंदुस्तान में भी दस्तयाब हैं। जो लोग किताबों की सूरत में पढ़ना चाहते हैं तो मकतबा अल फ़हीम ने भी उनकी किताबें छापी हैं। इसी तरह से वहाँ से भी अलकिताब इंटरनेशनल से भी उनकी कई किताबें छपी हैं और आदमी उनसे इस्तेफ़ादा कर सकता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला मोहम्मद इसहाक भट्टी रहमतुल्लाह अलैह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। जो किताबें उनकी दस्तयाब हैं हम उनसे पढ़ें। उन्होंने जो कुछ लिखा है अल्लाह ताला उन तमाम तहरीरों को उनके लिए सदक़ा जारिया बनावे और हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हम इस सरमाए की हिफाजत भी कर सकें, इससे इस्तेफ़ादा भी कर सकें और इस सिलसिला को, इस इल्मी वर्से को आगे भी बढ़ा सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।